आई थिंक ये वो फिल्म है जहाँ पे हमने मजा आ गया. Ninja होता है ना, fruit ninja. फ्रूट Ninja is like edit ninja. I was genuinely thinking to share the first cut of Nexon EV Prime. तो उसको मैं ऐसा बोलता था कि सर ऐसे आवाजें आने चाहिए. Like okay. मैंने उमा खान मुझे उमा खान भाई कितने लोग हैं. मतलब I just every time I take a turn I see someone new. हाँ, जो TCU होता है तो वो फर्स्ट कट फाइनल कट हो जाता है. Hello and welcome to the second episode of the TCU Crew podcast. I have with me the same guests as I had in the first episode, Mr. AJ sir and Mr. Ray. Hello. चिप्स खा रहा है वो. मैं चिप्स खा रहा हूँ. मुझे भूख लग गई थी guys. Same host. Same Amol. host as yesterday. Yes, As yesterday. Very specific. So last time we talked about Franks versus drone film, and today we'll talk about the Nexon EV Prime film. But I think like the last time we should start by showing the film to the audience. Nexon is a very special film, very close to the heart. Yes. आई थिंक ये वो फिल्म है जहाँ पे हमने मजा आ गया. This is a very different film in almost all aspects, I would say. Apart from being an automotive presentation, this is like a whole different thing. Talk to me about it. I'll just start with how we went about it. I think Nexon का जब brief आया था, they wanted to portray the Nexon as fun electric vehicle. So हमने decide किया कि again it is जैसे last time we spoke about Franks versus drone जहाँ पे हमने बोला कि कुछ तो अलग करना चाहिए, कुछ तो interesting करना चाहिए. So यहाँ पे भी एक approach था कि what is that new thing that we can try with this film. We were inspired by a lot of work that Volvo was doing abroad. So हमने reference किया कि वो लोग अपनी EV गाड़ियाँ को कैसे दिखा रहे हैं and how could we sort of try and showcase an Indian vehicle जो शायद लोगों ने देखा नहीं है. I think EV was a very new segment तब. That entire market was being established. That entire notion of an electric vehicle, what does it mean? Where does it stand from a branding, marketing perspective? So we were like, "Ki, let's just go this way. Ki EV is the future, which is clean, minimal, simple." So I think हमारे पूरे फिल्म का अप्रोच था कि we approach the film very simply yet in a very sophisticated manner में. We wanted to create an automotive film that would essentially stand out. यहाँ पे वो करना हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी था. मतलब it's essential to work hard for all of your films, but I think Nexon was something जहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी प्री प्रोडक्शन में. प्री प्रोडक्शन में. Just प्री प्रोडक्शन के लिए because the idea was so absurd. The look was so fresh and new. मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, but again, it is a film that is very close to me and मैं आज भी वो film देखता हूँ तो मैं मज़ा आ गया.
अप्रोच बहुत ही नया था, बहुत अलग तरीके से चीज़ें करने वाले थे. वी वर गोइंग टू शोकेस अ कार इन अ स्ट्रक्चर, एंड उसी में हम लोग वो कार के सारे फीचर्स बताने वाले थे, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ शो द कार रनिंग, मूविंग. भी उनके कुछ रिक्वायर, क्लाइंट हैड सुपर्स अबाउट रेंज एंड ऑल, सो लाइक गाड़ी को थोड़ा चलते हुए दिखाते, तो वो Yes. इवेंचुअली हम सेट के बारे में आई थिंक बात करेंगे तो वो तब आएगा, बट उतने से सेट पे हमने गाड़ी को भी भगाया, उसके भी शॉट्स लिए. Okay, so what went into the pre-production stage in this? Did everything go as planned as well as you had planned? The pitch was smooth, and I think we made sure कि वो smooth जाए. And essentially treatment note ये सब था कि how we are going to treat the film, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या colors होंगे, why the same palette and all of those things. And the next thing was then painting the landscape out to the client कि what will your film be. So essentially you storyboard that stuff out. Yes. So हमने decide किया of course storyboard तो करेंगे, but the film is also going to be मतलब जो मैंने भी realize किया था कि that film is going to be very hard for a lot of people to visualize कि क्या होने वाला है, because आप एक structure के अंदर बंधे हुए हो. So the entire idea was कि ये ना, if you see the film, it has a very nice smooth graph. It's like the motions are very fluid. Every shot flows into one another. So essentially, we had to get that part right. And I think later on हम लोग बात करेंगे about how we got this special equipment just to get those shots. ताकि again, so हमने imagine किया था ये बहुत ही smooth, simple, fluidic film होगी. So camera motions ये सब plan करना बहुत important था. And of course, you present to the client a storyboard. You explain to them frame by frame कि क्या दिखने वाला है ये सब. But at one point, I realized कि हमको ना शायद एक scratch बना लेना चाहिए, so that it is just easier for me to visualize my film. It is easier for me to convey to the clients कि क्या होने वाला है, and to like just bring everybody up to the same page कि guys ये shots है, ये करना है. So I think हमने first time Nexon के लिए हमने try किया था कि we sort of shot the entire film in pre itself. हमने क्या किया, I had shout out to Siddharth Chari, a childhood friend who's a game designer. He was free, मैंने उसको कॉल किया, वो ऑफिस आया, and उसको मैंने बोला कि देखिए ये आइडिया है, you can if मतलब he used to work in Blender and all, so I'm like if you're just good enough with Blender, just get me like rough models, rough camera movements and things to just make like a makeshift video scratch film of sorts. He's like sure, why not. I think उसको कितना 2 दिन था, 3 दिन हम 3 दिन हाँ. बैक टू बैठ के हम उसको So उसने सब मॉडल किया. We got Land Rover कौन सा, yes Range which Rover model? I don't know some Range Rover हाँ, Evo some Evo Evo, Evo वाले Evo, जोन में हाँ. था. Blender में like you only get a few options, so उसमें से Range Rover एक था. वो readily available था. Available, हाँ. And Yeah. luckily उन दोनों का shape, size, format सब Similar similar था, so we like let's just go with it. And we animated a lot of the parts which were the tricky shots, जो हम लोग वो smooth fluidic shots लेने वाले थे. We tried उसके साथ बैठ के कैमरा. So I remember Blender में भी क्रेन का कुछ तो एक ऑप्शन था हाँ, उसने जिससे कुछ तो एक बनाया था जिससे हमने वो मूवमेंट हाँ. फिगर आउट किया था. तब जाके हमने टेक्नो क्रेन Yes, हमने yes, डिसाइड किया कि yes. नहीं ये टेक्नो क्रेन के बिना पॉसिबल नहीं होने वाला है. Yes. हाँ, what the scratch film helped is basically मैंने client को पहले इनका film दिखा दिया, and I'm like, if you are convinced with this, let's just Yes, make the set, yes. get the car, and hit the red button. It just paints an easier picture to everyone कि हाँ okay ऐसा कुछ दिखने वाला है. The client is like great, I like it. सही angle, अच्छे movements दिख रहे, great. For the rest of the crew they're like हाँ सही ठीक है, ये shot लेना है, ये ऐसे जाने वाला है, ये ऐसा movement होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है. It's just but I don't know, because there were so many things that had to be done on the day of shoot कि ये film I feel like solved most of our problems. It just helped Yeah. सबको एक ही पेज पे कि चलो गाइस इसको अभी हमको यहाँ बनाना है, ये है इसको रियलिटी में करना है अभी हाँ. आज.
So Technocrane basically Zoo Grips बॉम्बे में है, निनाद. सो Zoo Grips से फिर हमने कॉल किया, हमने Zoo Grips निनाद से बात की, हमने निनाद को भी ये सेम रेफरेंस बताया और निनाद ने फिर बोला ठीक है, ये जो तुम लोग सोच रहे हो सही सोच रहे हो, टेक्नोक्रेन पे ये सब पॉसिबल है. और उसने जो खुद से जो उसने लिया था या पास में जो भी किया था, उसने भी हमको थोड़ा एग्जांपल्स दिखाया कि टेक्नोक्रेन ऐसा परफॉर्म करता है, इतना फास्ट जाता है, उसका स्पीड आई रिमेंबर फुल 35 फीट 6 सेकंड्स में चला जाता है. उसका इतना फास्ट और टेलीस्कोपिक आर्म्स है बेसिकली टेक्नोक्रेन, और ये 35 फीट लॉन्ग. द थिंग वाज कि हमको एक ही दिन मिला था शूट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाकी सब चीज़ें करने वाले थे. सो टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट वाज वेरी एसेंशियल कि दैट वी कैन डू मल्टीपल टेक्स flawlessly with close to very good accuracy. So jib, there are some very great jib operators, but I still feel कि I don't know, मतलब आपको शायद better पता है, but jib is manual, I would No, say. हाँ, And jib. Technocrane is what it is, I think, supposed to be. Yes. Like, I think that if jib was the starting point, I think Technocrane is where the technology evolved. I think pinnacle of technology है वो हाँ, Technocrane. ऐसा final product है. फाइनल प्रोडक्ट है वो. So I'm like, हाँ, there will be no. So jibs में ना सिर्फ weird एक floaty हाँ, camera feel आता movement है, आता है, yes, जो yes. Technocrane में is just so stable. So again, जो सर कह रहे थे कि वो सेम क्रेन के शॉट्स जो Technocrane पे पॉसिबल है, तो हम इमेजिन करना शुरू कर दे. एंड उस हिसाब से हमने Yes. जो नए टाइप के एंगल्स जो मिलने वाले हैं हमको, बिकॉज आई स्टिल फील कि ऐसा यू हैव सीन सच मूवमेंट ऑफ कैमरा वाइल द कार इज आउटडोर्स, ट्रैकिंग शॉट्स एंड वो सब भी वो आर्म्स पे होता है, Yes. बट यूजुअली यहाँ पे आई डोंट थिंक इन स्टैटिक, जहाँ पे गाड़ी इज इनसाइड अ स्टूडियो वेयर यू हैव टू शोकेस द कार ब्यूटीफुली और नॉट, ऐसे टाइप के मूवमेंट्स अभी तक देखे नहीं थे. सो लाइक लेट्स जस्ट डू दिस. हाउ डू वी मेक इट डायनामिक, हाउ डू वी मेक इट स्मूथ. यस. एंड हर शॉट को एक दूसरे शॉट में ब्लेंड भी होना था. वो आई थिंक यस, आई थिंक टेक्नोक्रेन किल्ड इट. तो सर के वर्ड्स में सोचने का ना पैसा नहीं लगता है. मैं तो बहुत कुछ चीज़ें सोच ली, अब तो ये सब होने वाला है. एंड व्हेन इट केम डाउन टू, अगेन एवरीथिंग हैज़ टू बी डन ऑन बजट. इट इज़ योर चैलेंज एज अ फिल्म मेकर कि आप एक अच्छे आइडिया को एक बजट में बिठा के एक अच्छी फिल्म कैसे बनाओ. सो अगेन इधर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो आपके आइडियाज़ पे या फिर आपके टैलेंट पे, इक्विपमेंट में, वन एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, वन एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग पे. एंड आई रिमेंबर like the two of us were so convinced कि हाँ भाई Technocrane तो चाहिए. It has to be smooth, it has to be flowy, it has to be seamless. Yeah. And I remember getting, because Technocrane is a very expensive equipment, ये films में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है. I remember एक point पे I think हम लोग आरी पे शूट करने वाले आरी पे शूट करने वाले थे. because again I just wanted everything to be as soft, as smooth as possible. So I thought कि RE का color science will also come into play. We would leverage on that. Apart from that, I'm a Sony fanboy. So I remember हमारा discussion, हम like हम lens पे कम नहीं करेंगे. Sony is a trusted fail-safe system. Yeah. So I think we stepped from an RE to an FX6. FX6. So हमने ये प्रोजेक्ट भी Sony FX6 FX6 और पे FX3 पे शूट किया. Interiors FX3 small पे, camera. yes. और दोनों को मैच करना भी Very simple. very simple. So, if Technocrane was not there, then maybe the film. No, the film wouldn't have. मैं तो नहीं no, शूट no. करता. मैं तो नहीं शूट करता. I'm like I was so convinced कि ये फिल्म इतना अच्छा होने वाला है. हमने डिसाइड किया कि Technocrane is very important, and at one point I was, मतलब एक पॉइंट पे जो एजेंसी थी, मैंने एजेंसी के साथ बात किया कि अगर Technocrane नहीं होगा तो ये शूट नहीं होने वाला. Then I can't take the guarantee of this film. We needed the Technocrane to make sure that the film happens. It was, I think, the most crucial piece of equipment that would make sure वो film scratch film से बाहर है. So एक point पे हमने cameras कम कर दिए. We were also willing to go down on fees just because we wanted that piece of equipment. And we got it. Yeah, we got it. We got People it. made sure कि वो equipment आ जाए. And Yeah. brilliant. Thank you for making it happen, folks. प्रोडक्शन के अंदर जैसे रे ने बताया, बट उसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस थे? मैंने सर को एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया था.
So the thing was ना कि हम लोग walls बनाने वाले थे, so I'm going to cover up the entire set, ठीक है? Now मेरे को पता था कि हमको इतना बड़ा एरिया शायद नहीं मिलने वाला है, and I wanted to commit some depth into the backdrop. The challenge was car is big, ठीक है? Usually आप उससे करके Yes. Top light से से box करते बना हैं, के वो yes. कार पे आता है। Now the challenge was कि यहाँ पे टेक्नोग्रेन हर जगह पे जाने वाला है, and so the lights couldn't be on the set. And the second thing was कि because the film was going to be very minimal, very clean looking, very premium, very sophisticated, the primary criteria of the look of the film would be probably the softest highlights roll off that you can achieve. कि you shouldn't know कि कहाँ पे आपका light end हो रहा है and कहाँ पे shadows जा रहे हैं. It is like one stroke of a brush. So that was the challenge. ये ऐसे शूट करने का प्लान है गाइस कि ऐसा सॉफ्ट मक्खन बटर लाइट चाहिए. Like it should be portrait light but not for faces, but for the car and not on my shoot floor. हमको जो स्टूडियो स्पेस मिला था that was 60 by by 80. हाँ by 100 था if I'm not 100 था 80 था उसमें भी कुछ तो हाँ बट इधर 100 या 80 था एंड हाँ फिर उसमें से 60 by 60 में से 40 by 40 का 40 by 40 का सेट बना। जो फ्लोर था हमारा वो ग्राउंड से 4 फीट ऊपर था और उसके ऊपर हमको 14 फीट और ऊपर वॉल बनाना था। सो वॉल था और 18 कैलकुलेट किया था. हाँ, अब हमको चाहिए था कि लाइट इवनली स्प्रेड हो और सॉफ्ट स्प्रेड हो। तो जैसा री ने बताया जनरली हम लोग टॉप लाइटिंग करते हैं, तो टॉप लाइटिंग में सो बहुत जगह पे ना हॉट स्पॉट्स क्रिएट होते हैं और वो दिखते हैं, वो ऐसा इवनली लिट नहीं होता है। और हमको इस बार ये भी करना था कि टेक्नोक्रेन भी ऊपर जाने वाला था, 35 फीट मिनिमम जाने वाला था। टॉप लाइटिंग में हमको और नीचे लेना पड़ता है जनरली लाइट्स को। आई थिंक वो भी अनलॉक हो गया था बिकॉज हाँ। हमने वैसे लाइट किया, हमको टॉप का बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिल गया yes. क्योंकि टॉप लाइट कन्वेंशनल टॉप लाइट नहीं था. सो मुझे याद है प्रोडक्शन के साथ भी बहुत इस पे डिस्कशन हुआ था बिकॉज ऑफ लाइटिंग बजट। बेसिकली करना क्या था हमको, तो हाँ, सो इस पे बेसिकली राम अपना गायफर है, ओह यस. ठीक है। राम इज किक-एस गाय, उसको कुछ भी प्रॉब्लम दो वो सोल्यूशन के साथ आता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये लाइटिंग हमने उससे भी डिस्कस की थी। सो उसने क्या किया, सो उसने लाइक क्यों कर रहे हो आप? हाँ। ऐसे क्यों करना है? क्यों? टोटली कन्विंस नहीं था, पर उसको कन्विंस करना पड़ा, उसको बताना पड़ा कि ये अप्रोच डिफरेंट है, ये तो कर रहे हो. ये कर रहे Just do हैं। this. हाँ, देयर इज We'll नो, figure it out. हाँ, नो टू वे अबाउट इट, वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस। सो हमको बेसिकली आइडिया था कि हम सारा का सारा रिफ्लेक्टिव लाइट ही यूज़ करेंगे। डायरेक्ट लाइट कभी भी, बाउंस लाइट, हम लोग कभी भी लाइट डायरेक्टली कार के ऊपर नहीं गिरेगा। सो हमने ये 30 लाइट्स तो डाले थे। अब फ्रंट क्या हो रहा था, फ्रंट भी थोड़ा डार्क हो रहा था, तो हमने क्रेन से लाइट बाउंस किया था। Yes. क्रेन्स को हाइट लेके, लाइट्स को ऊपर लेके हमने लाइट सामने से बाउंस किया था। So, ऐसा एक और- बहुत ही सुपर मैसिव क्रेन पे I don't know, बहुत वो- दो बड़े लाइट्स जो फ्रंट से फिल दे रहे हैं एंड वो क्रेन वो मूव भी हो Yes, रहा था ना yes. डिपेंडिंग ऑन क्या एंगल क्या angle पे कर रहे हैं। टेक्नोक्रेन जाने वाला है, उस हिसाब से उसको थोड़ा मूव करके वहां पे भी लाइट वाइट कर रहे हैं. सो अब जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो जनरली क्या होता है 40 बाई 40 का, जब भी आप कपड़ा मांगते हो, जब भी आप एक रिफ्लेक्टिव बाउंस एरिया कपड़ा मांगते हो, तो उसमें हमेशा स्टिचिंग होता है। अब वो आई स्टिचिंग थिंक 40 बाय 40 का कपड़ा भी नहीं आता. नहीं, 20 by 20 20 का बाई आता है. 20 का आता है, वो हाँ. स्टिच करके वो लोग बड़ा बनाते हाँ, हैं रिक्वायरमेंट के हाँ, हिसाब हाँ. से। तो उसके अपने लिए स्पेशली साइक्लोक्लॉथ लेकर आया गया था हमने। नहीं, वो राम ने कहा था कि उन्होंने नया कपड़ा कपड़ा सिलवाया है yes, only yes. for this shoot. Yes. And he's like, ये देखो, there are no seam lines. आपको लाइन का भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा. हाँ, मतलब I think वो पॉइंट पे राम was like also Yes. let's go, ठीक है, तुमको ये करना है, let's just go for it. और अब कार शूट कर रहे हैं ना, और इतना सारा लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहा है नीचे, और वो अब 18 फीट, अब जो हमारा स्किमर है, जो हमारा साइक्लोक्लॉथ है, वो बेसिकली और ऊपर चला गया है, ठीक है। अब वहां से लाइट बाउंस करके आना, ये सेट भी बड़ा बन गया था. सेट बड़ा बन गया था। यस, हाँ, तो ये इसके लिए आई रिमेम्बर उस दिन जब हम लोग फ्लोर पे गए, तब ऐसा सब चल रहा है, फाइनल टचेस पेंटिंग वेंटिंग का हो रहा है एंड आई सी ऐसा सर
राम, कुणाल और लाइटिंग के बहुत सारे लोग ना बहुत टाइम से भीड़ बना के खड़े कि क्या करना है, सब ऐसा कर रहे हो। एंड आई थिंक तब तब ऐसा सर आके बोल रहे रे सेट बड़ा बन बड़ा गया बन गया। है। हम लाइक वाओ वेरी नाइस, ये तो अच्छी बात है, पोस्ट में कम चीजें निकालनी पड़ेगी मुझे। एंड देन हाँ फिर आई हाँ थिंक वो उसने हाइट, हाइट में बड़ा कर दिया। हाँ अब जिसके पीछे से हमारे लाइट्स जाने वाले थे, तो अब हमारा जो हमने एंगल डिसाइड किया था कि ये एंगल्स पे हम लोग लाइट बाउंस करेंगे, अब वो एंगल डिफिकल्ट हो गए करना। आई थिंक क्योंकि वो बहुत ऊपर चले गए यस थे ना इसलिए हाँ तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया। यस। सो अगेन वहाँ पे राम और उसके टीम ने फ्लॉलेस जॉब किया। वो लोग ने जैसा लाइट चाहिए था, बाउंस चाहिए था, वो लोग ने एग्जैक्टली वैसा रिक्रिएट करके दे दिया। सो दिस वाज द चैलेंज जो मैं हाँ बात कर रहा था। कुछ तो चैलेंज होना चाहिए कुछ ना, तो चैलेंज होना challenge। कुछ चैलेंज तो होगा ही। चाहिए। यस अगर नहीं हो रहा तो हम ले लेते हैं ले अगर लेते हैं। guys, यस यस आज कुछ तूफान ही करते हैं। और वो आपने बीच में आप बोल रहे थे कि 2 सेट्स थे। यस यस। सो हाँ, तो टेक्नोक्रेन को लेकर तो मुझे याद आता है तब चैलेंज ये हो रहा था कि हमने सेट को 2 में डिवाइड कर दिया था। तो एक साइड पे भी एक और कार खड़ी थी जिसका इंटीरियर हो रहा था। अब हमको रेप्लिकेट लाइटिंग ऐसा ही करना था कि सब कुछ लाइट बाउंस होके ही आ रहा है, कहीं से भी डायरेक्ट सोर्स नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे भी उतना बड़ा, नॉट 40x40 बट 20x20 फीट का हमने बाउंस उनको लगाया था। अच्छा बाउंस। हाँ, हर हर जगह से लाइट बाउंस होके अंदर आ रही है। हमने सनरूफ खोला हुआ था। सो बेसिकली वो जो पूरा फ्लोर था, अगेन बिकॉज वी हैड जैसे नो प्रोडक्शन कम्स विदाउट challenges समटाइम्स, टाइम इज जस्ट अ बिग चैलेंज क्योंकि आपको बहुत चीजें करनी होती है एंड आपके पास एक ही दिन है। सो अगेन क्योंकि हम लोग काफी बार सेट के साइज के बारे में बात कर रहे थे। द रीजन व्हाई वी नीडेड अ लेंथी सेट इज ऑफ कोर्स टेक्नोक्रेन, एंड हमने पीछे एक और मिनिएचर सेट बनाया था which is a smaller replica of whatever was being done on one side of the studio. So the second unit also had their own walls जो बैकग्राउंड में कमिट होंगे। Yes. एंड जैसा कि सर कह रहे थे कि उनका लाइटिंग भी सिमिलर था बट ऑन अ much more compact, Compact, much more efficient setup because वो लोग interiors कर रहे थे। And I think the second unit also did a fabulous job. Yeah. Kunal and Vinci, उन्होंने किल कर दिया। किल कर दिया। लोगों की बात हो ही रही है तो इसमें 2 की प्लेयर्स और थे। निनाद निनाद जो टेक्नोक्रेन लेकर आया था, जो टेक्नोक्रेन ऑपरेट कर रहा था, एंड मिस्टर ओम प्रकाश मोहपात्रा। आई थिंक हमको जिप कुछ भी मतलब इफ देयर Most इज of the shoots जहाँ पे there is a camera that needs to be operated Operated. and is on something, यस I think Mohapatra मोहपात्रा ji is like यस। flawless at it. सो मोहपात्रा जी ज़्यादा छोटा सा बैकग्राउंड, मेरे को एकदम बहुत डिटेल बैकग्राउंड भी नहीं पता, पर वो ऐसा संजय लीला भंसाली और ये सब के लिए कैमरा, बेसिकली टेक्नोक्रेन और उनके उनके सॉफ्ट, आई डोंट नो के क्या बोलते हैं, उनके प्रिसिजन हैंड्स। Precision controls. whenever you work with him you always learn something new. and also I remember कि हमने हमारा शूट कर लिया था जो हमारे शॉट्स थे, और उन्होंने हमको स्टार्ट से ही बोला था, निनाद और इन दोनों ने मिलके हमको बोला था कि प्लीज़ हमको 10 मिनट देना और हमको 10 मिनट में हम कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेसिकली दे वांटेड अ फ्री हैंड वेयर दे वांटेड कि थोड़ा हमारा भी एक्सपीरियंस का उपयोग कर लो So आप उनको लोग। भी मजा आ गया था सेट देखकर। They Yes. are also like आप लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हो। We have some ideas. We would like to try those out. And I remember कि this was हम लोग ने सुबह 9 बजे शुरू किया था। This was finally जब लास्ट कुछ शॉट्स हुए थे, it was 9:20. So already हम लोग almost 20 minutes overboard थे and still ऐसा हो गया सब कुछ, and these I remember both of them being like कि आपका हो गया है ना, your हाँ। entire film is done, you have everything ready, सब कुछ ना, just give us 10 minutes, we just want to see what we can do. सो वो लोग इतना ज़्यादा में, सिंक में आ like गए hive थे, mind. इन्वॉल्व हो गए थे। सो यहाँ से प्रोडक्शन बोल रहा था कि टाइम चला गया है, दे विल चार्ज एक्स्ट्रा, बट ऑन द अदर हैंड दिस गाइज आर लाइक किड, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, हाँ, हमको गिव अस करना 10 है। मिनट्स, वो 10 मिनट हमको चाहिए, We want to do this. वी वांट टू डू दिस। अच्छा, so this is after After the day Yeah. has sort of सब ended. film हो गया है, they're like please अब तो हो गया है ना, now just we want to just हाँ we want to just play around. I'm like yes sure, why not. या And some very good shots have come out of those last 10 minutes. नहीं, इसीलिए essentially filmmaking is very collaborative. Yeah, it's a team effort always. The last time we talked about all the 60-70 people that you managed. एक आदमी कभी पिक्चर नहीं बना सकता। इस सेट पे 200 लोग थे। आई हैव Oh, द yes. काउंट।
Oh yes. मैंने ना एक पॉइंट पे ऐसा दिन चलता गया, मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, हर जगह पे हलचल ये सब हो रहा था। एक पॉइंट पे ना उमा खान, who was the producer at this, who was running the show, मैंने उमा खान को पूछा, उमा खान भाई कितने लोग हैं, मतलब आई जस्ट एवरी टाइम आई टेक अ टर्न आई सी समवन न्यू, हम लाइक ये लोग देख के जा रहे हैं क्या हो रहा है, बोले नहीं सर देयर आर सम 180 to 200 people on floor, हम लाइक अच्छा अच्छा। And this is an indoor shoot. This is not an outdoor shoot. It's a studio shoot. And this is a longer film than, slightly longer film than Drone vs. Bronx. अगेन अच्छे फिल्म के टाइमिंग्स मेरे को याद नहीं है। आई कैन टेल यू ऑल द बैड फिल्म्स दैट आई हैव डन एंड वो कितने लंबे, बट ऑल द गुड Yes, फिल्म्स sir. मेरे को नहीं पता है कि कितने लंबे हैं। आई थिंक फिल्म्स शुड जस्ट प्ले देयर लेंथ्स आउट। So अब एडिट की बात कर रहे हैं तो एडिट मैंने अपने बहुत ही ट्रस्टेड कॉमरेड को दिया, व्हिच इज विनोद भाई साहब, विंजी, Vinzi. व्हाट अ गाय, also known as Vinzi. Mostly known as Vinzi. Nobody knows him as. Vinod, yeah. जो ये पॉडकास्ट सुनेगा उसको पता चलेगा अब कि उसको पता है विंजी का असली नाम क्या है। Vinzi he was just himself, smooth, fast and fluid. Exactly what the film needed. how much time did he take to edit it? Not a lot. I think Vinzi को footage मिला, I think अगले दिन उसके पास first cut. Again, सारा material was there. Yeah. He's like कि तुम लोगों ने अच्छा shoot किया है। Vinzi खुद set पे भी था. So he was also very well versed with क्या shots right from pre-production imagine हुए, क्या shots उस दिन लिए गए and कैसे उसको timeline में arrange करना है. And again he is just too good with his blade tool. Ninja होता है ना, fruit ninja. Yeah, fruit ninja. Vinzi is like edit ninja. Da Vinci Resolve मेरे ninja. को याद भी नहीं, आई थिंक मैंने विंसी को बोला था कल सुबह तक फर्स्ट कट भेज देना, एंड आई थिंक शाम या कभी तक तो आ गया। बस लाइक ये देखो ऐसा कुछ बन रहा है, I'm like let's go. My entire pre-production pitch PPM was flawless. Again मेरे पास स्क्रैच फिल्म था, सब शॉर्ट डिविजन था, it looked like a good film on paper. And जब शूट हुआ we got all the shots, everything. And I think वो हमेशा होता है ना, when you do a project, a good project, a big experimental project, you are always sort of anxious with your first cut कि जब client देखेगा, because at the end of the day it's their film, so it is very important to get that right कि आप product कुछ भी हो, film आपका हो, आप आपका product उनको ही देने वाले हो. So usually कोई भी whenever you present a first cut there is some sort of anxiety, some sort of feedback आएगा, there'll be people are open to it because they understand the brand and everything probably better than me, things like those, कुछ भी हो सकता है. But I think Nexon was one such film where I was I remember I think मैंने सर को बोला था कि मैं लाइफ में इतना excited first cut present करने के लिए कभी नहीं हूँ. Like never. I'm like I am so thrilled. Mail में लिखते हैं ना, I'm so thrilled to share. I was genuinely thrilled to yes. share the first cut of Nexon EV Prime. And legit, no feedback. No feedback. वो शॉट्स इतने अच्छे लगने लगे कि वो लोग सुपर्स लाके दे लाइक हाँ ये अच्छा लग रहा है, आप इसके बारे में बात कर दो. ये आई थिंक एक ही फीडबैक था एक ही कि आप यहाँ से सुपर्स हटा दो, कहीं और डाल दो बस. एंड द फिल्म वाज गुड टू गो. लिटरली फर्स्ट कट टू फाइनल कट में से एक Yeah, feedback ये था वो कि फिल्म है. ये वो फिल्म. ये That's why film- I'm so proud of it. I would just like to tell the audience कि this never happens. Firstly, client कभी first cut में खुश नहीं होता है. नहीं I beg to differ. I said almost never happens कि client खुश होगा first cut में and supers हटाने के लिए बोलेगा. हाँ, तो TCU होता है तो वो फर्स्ट कट फाइनल कट हो जाता है. Sure. Yeah. I would again like to emphasize कि the scratch film is so important in this. ठीक है, and you've made the deck out of it also, which is taking the same shots and the fluidity of the shots. Yes. I made the cut first, then made a storyboard out of Yes. it. यहाँ पे जितनी भी references दिखाए गए हैं वो सारे के सारे almost to the T replicate हुए हैं. Planning to the T. Yes. Very important. Having a good idea is one thing. Knowing the right way to execute is another thing. I feel it is very important as a filmmaker, as a director कि आपको अच्छे ideas आते हो, but आपको अच्छे ideas को आप अच्छे तरीके से कैसे execute कर सकते हो. I think वही गेम है. वही game है. Yeah. क्योंकि big ideas need better executions. So इसलिए
planning just makes it that you cover all your base. You figure out कि क्या challenges हो सकते हैं, क्या shots possible है, क्या possible नहीं है, what is beyond our reach, वो कितना दूर है वो reach को कहाँ तक extend कर सकते हैं, कि how crazy can we really go. I think वो set पे समझ में आता है. सो इस स्टोरी बोर्ड में वो जो प्लग वाला शॉट है ना, हाँ. तो वो देख के मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है. सो टेक्नोक्रेन पे ही हमने वो शॉट लिया है, प्लग का शॉट. ओके, तो उसमें हमने नीचे सुला दिया था. So और अगर आप उसको- sorry हाँ. अगर आप short देखोगे ना, there is this nice plug that comes into frame and वो charge होके आता है. Essentially it's just a plug that is kept on the floor and सिर्फ टेक्नोग्रेन ऊपर से ऊपर से नीचे नीचे जा आ रहा है. रहा That's it. I'm telling you, filmmaking is a body of life. The better you lie, the better your films are. I think we can talk a little bit more about post production. I think you wanted to talk about sound. Yes, I think a lot of क्या कहते हैं फिल्म का टेक्सचर उसके साउंड से आए. इफ यू हियर द नेक्सॉन फिल्म वेल इट्स अ वेरी sound heavy film. It's a very SFX heavy film because it is futuristic. It's an electric. Manas, a very good friend, very amazing sound designer and a sound engineer. So I remember Manas को मैंने ये कट भेजा, मानस को भी मजा आ गया. And so मानस इज लाइक आप आओ, तब तक मैं कुछ रेडी करके रखता हूँ आपके लिए. सो वी गो एंड आई थिंक हम लोग शायद उसके स्टूडियो में आराम से 2 से 3 घंटे बैठे थे. एंड वी वर जस्ट सॉर्ट ऑफ साउंड डिजाइनिंग द एंटायर फिल्म एंड इट इज़ ब्यूटिफुल हाउ टैलेंटेड दैट मैन इज. उसको मैं ऐसा बोलता था कि साहब ऐसे आवाज़ें आने चाहिए. लाइक ओके, सीधा वो ढूंढता था, टाइप करता ये नहीं, अच्छा वेट वेट, यू नो व्हाट, आई विल जस्ट मेक दिस अप. एंड फिर वो करता था. कहीं कहीं पे उसने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें किए थे. आई रिमेंबर नेक्सॉन में ना, सो अगेन अब देखोगे व्हेन द चार्जर इज बीइंग प्लग्ड इन, देयर आर दीज वेरी न्यू फ्यूचरिस्टिक साउंड्स. Again, the film had to be thoda quirky, thoda fun, yet the sound had to be very premium, very sophisticated. And I think Manas did a pretty fab job at doing all of this and bringing it all together. Because again, it had to be an audio-visual experience. I remember हमने एक बहुत ही interestingly fun चीज़ किया था is so there is a shot जब हम लोग बूट स्पेस दिखा रहे हैं, वहाँ पे सब बैग्स आते हैं एंड द कैमरा चार्जेस इन सो दैट वी कैन सी द इंटीरियर्स. एंड इंटीरियर्स में सबसे पहले यू सी द डैशबोर्ड में इंफोटेनमेंट यूनिट एंड उनका सुपर था कनेक्टेड कार टेक या कनेक्टेड कार फीचर्स. एंड आई रिमेंबर मी एंड मानस वी वर डिस्कसिंग कि कनेक्टेड कार टेक को ना एक्चुअली कनेक्टेड कर देते हैं. हम लाइक ऑलरेडी सुनकर ही अच्छा लग रहा है, सो लेट्स गो फॉर इट. सो अगर आप सुनोगे ना तो कनेक्टेड कार टेक में ना देयर इज अ वॉइस दैट गोस सेज कनेक्टेड कार टेक. सो हमने डिसाइड किया कि एक ह्यूमन एलिमेंट से हाँ एक ह्यूमन वॉइस को थोड़ा रोबोटाइज करके लेट्स ब्रिंग लाइक ऐसा इंसान टू द कार एंड कनेक्टेड. तब लगा था वाओ क्या बेटर, बट इट स्टिल साउंड्स वेरी फन. सो हमने फटाफट आई थिंक मैंने मनो को कॉल किया, मनो को बोला जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ यू जस्ट सेइंग कनेक्टेड, ऐसा कनेक्टेड अलग अलग वेरिएशंस. एंड देन मानस गॉट ऑल दोस ट्रैक्स इन, ऐसा फुल मस्त मैनिपुलेट किया एंड इट इज हाउ इट इज. So sound was very fun, sound was very interesting. It is definitely something that you need to watch on your home theaters or on your headphones. मैं एक चीज़ जस्ट मेरे को याद आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. आई रिमेंबर आफ्टर दिस फिल्म कमिंग आउट, आफ्टर वी शेयरिंग कि दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव डन, वी वर वेरी प्राउड ऑफ इट. I'm still very proud. स्टिल आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. ये आई थिंक एक स्टेप अप जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, हाँ. एक स्टेप अप ले गया था हमने, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए. और हम लोग, मैं सेट पे गया था तभी मेरे को, अरे ये काम करेगा ना, ये करना चाहिए ना, राइट है ना, होगा ना ये. जस्ट बस ये हम लोग बस क्योंकि फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्टिव लाइट यूज़ कर रहे थे और प्रोडक्शन के साथ हम मुझे याद है प्रोडक्शन के साथ बैठ के उनको भी समझाना कि इतने सारे लाइट्स की ज़रूरत क्यों है, ये एक्सपेंसिव क्यों हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. हमने जब ये वीडियो शेयर करना चालू किया, हमको हर किसी ने आई थिंक मैसेज करके बोला कि गाइस दिस इज अ इंटरनेशनल वर्क. हमको फिर वैलिडेशन धीरे धीरे मिलने लगा. मैंने एक दूसरे क्लाइंट को भेजा था एंड वो क्लाइंट का था कि ये आप लोगों ने बनाया. मैंने कहा हाँ जी सर.
This does not look like it has been shot in the India. country. Yeah. I'm like, thank you, sir. बड़ा compliment बड़ा है sadly, compliment. but इंडिया में भी directors बहुत अच्छा काम कर रहे हैं guys. Yes. So हाँ. सो मुझे याद है कितने लोगों ने इंडिविजुअली हम तीनों को मैसेज किया, तीन मतलब मैं, रे और विंजी को. उन्होंने हमको टीसीयू स्टूडियोज पे भी मैसेज किया. हाँ. उन्होंने मतलब दे वर जस्ट, दे कुडंट बिलीव समथिंग लाइक दिस हैज बीन पुल्ड ऑफ हियर इन इंडिया. है ना, ज्यादा Good shit. हाँ, नहीं नहीं, I am तो ज्यादा very ज्यादा happy to talk about it. यस यस. मुझे तो आज भी सोचकर मजा आता है कि It's not conventional. या हम ऑफ कोर्स जैसे हर शूट क्या बोलते हैं, वी कुड हैव डन मच बेटर थिंग्स. हाँ shoot के बाद ही दिखता है. शूट के बाद समझ में आता है. बट यस ठीक है. यस. That brings us to the end of the second episode. Wait, and always, as always, thank you everyone who were involved in bringing this project to life. It was a beautiful experience Yeah. and it is a very beautiful film. Thank you everyone for making it happen. थैंक यू. So that brings us to the end of the second episode of the podcast. If you have stayed till here, please consider liking and sharing the video. Also check out also check out other stuff on the channel as well. Also check out other stuff on the channel as well and subscribe to the channel. And we'll see you next time. Bye bye.